لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اس لیے اپنے پیٹ کی خاطر عزت نفس کا سودا مت کرے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تم جس طرح کی چیزیں کھاتے ہو کیا میں ویسا ہوں؟ تو سانپ نے کہا نہیں۔ تو بولے تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سانپ نے کہا تم چمکتے بہت ہو اس لیے میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ ای کو تھوڑا کم کر دیں۔ میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ بہت تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے اور بہت شاعری سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایسی محفلیں جب ملتی ہے جہاں پورے شہر اور پورے اطراف کے ذمہ داران بیٹھے ہوں، اور خصوصی طور پر مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں میری مائیں بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمارے سماج کو بناتی ہیں، جو گھر کو بناتی ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھا ہے۔ میں آپ سب کی موجودگی کو سلام کرتا ہوں۔ ایک بہت چھوٹی سی غزل کے 2-3 شعر سناتا ہوں۔ میں جب دنیا بھر میں ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں جاتا ہوں اور جو موجودہ حالات ہیں انہیں دیکھتا ہوں اور پھر اپنے سماج کی تاریخ دیکھتا ہوں، تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ تو چوک ہوئی ہے، کچھ تو غلطیاں ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں ماضی میں ہم نے کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ ایک غزل کے 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، جو حالات ہیں، جو دنیا اور ملک میں جو منظر ہے اس کے پس منظر کو یاد رکھیے اور یہ مصرع سنیے۔ آج تاریخ ہے حیران، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، سوچئے گا کبھی سلطان، کہاں چوک ہوئی، تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، میں دانشور لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، تم پہ دولت بھی ہے، تعداد بھی، طاقت بھی ہے، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، پھر بھی ہو بے سر و سامان، کہاں چوک ہوئی، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، میری نئی نسلوں، حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے، مسئلہ اب ہے مسلمان، کہاں چوک ہوئی، مسئلہ
सलमान कहाँ चूक हुई। और एक शेर जो बड़ा सच्चा है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। यहाँ पे हाजी शिहाब साहब बैठे हैं, अपने पांव की छालों की परवाह किए बगैर केरल से लेकर के अल्लाह के घर तक इन्होंने हाजिरी लगाई है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका खैर मकदम करें। अल्लाह ऐसे नौजवान और पैदा करे जिनमें दीन के लिए ईमान इतना मजबूत हो। मैं इन्हें सलाम करता हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। बड़ा सोचने वाला शेर पढ़ के जा रहा हूं। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। आज तारीख है हैरान कहाँ चूक हुई। शुक्रिया, आप सबका अजान हो रही थी और आप इंतजाम में खामोश रहे। मैं आपसे कह रहा था ना कि जब आप इस तरह से समाज में कोई बेहतर काम करते हैं तो चिढ़ने वालों की तादाद भी ठीक ठाक हो जाती है। आइए दोस्तों, निदाए मिंबर व मेहराब किताब से सुनते हैं यूरोप का इज़्तिराब। शायद आप जानते हों कि हॉलीवुड ऐश पसंदों के लिए सबसे बड़ी जन्नत है। सारी दुनिया के महरूम और पसमानदा लोग हॉलीवुड के रहने वालों पर रश्क करते हैं, लेकिन अखबारात व रसाइल में ये बात आ चुकी है कि वहाँ के रहने वाले काबिल रहम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके दिलों का इज़्तिराब और बेइत्मीनानी इंतहा को पहुँच चुकी है और दुनिया की हर आसाइश पा लेने के बाद उकताहट का शिकार हो जाते हैं। उनकी बेइत्मीनानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि बाज़ अवकात वो उकताहट को कम करने के लिए अपने मकानों हत्ता के बीवियों का भी आपस में तबादला कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद उनको क़ल्बी सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता। अल्लामा इकबाल ने यूरोप को बहुत करीब से देखा था। वो फरमाते थे, यूरोप में रोशनी आज इल्म हुनर से है। सच ये है कि बेचश्मा हैवान है ये जुल्मात, जो कौम के फैज़ाने समावी से है महरूम। हद उसके कमालात की है बरके वो बुखारात। ये एक पुरानी कहावत है कि आब हयात बहरे ज़ुल्मात में पाया जाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि यूरोप आलिम ज़ुल्मात तो है, लेकिन इसमें आब हयात नहीं, जिससे दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल हो। और वजह उसकी यह है कि चूँकि यूरोप वाले वही के इल्म से महरूम हैं, इसलिए उनकी सारी ज़िहानतें लोहे और जमादात और बर्क और बुखारात पर सर्फ हो रही हैं। इंसान को इंसान बनाने की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं, बल्कि उनकी सारी सलाहियतें जमादात को मुख्तलिफ़ शक्लें देने पर मरकूज़ हैं। और इसी का नतीजा है कि दौर हाजिर के इंसान की सुबह से शाम तक की ज़िंदगी मशीनी बन गई है। उसने परिंदों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया, लेकिन इंसानों की तरह रहना नहीं सीखा। गलत रास्ते मुस्तरिब और बेकरार इंसान ने दिल का सुकून हासिल करने के लिए बेशुमार गलत रास्ते इख्तियार किए, लेकिन उसे सुकून न मिल सका। किसी ने सोचा कि राहत और सुकून इक़्तिदार में है, लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद पता चला कि यहाँ तो एक लम्हे का सुकून नहीं। अब्दुर्रहमान अमवी, जो स्पेन में 50 बरस तक मुतलक़ुल अनान बादशाह की हैसियत से हुकूमत करता रहा, जब दुनिया से रुखसत हुआ तो लोगों ने सुना कि वो कह रहा था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 14 दिन सुकून के देखे हैं। कोई समझता है कि सुकून दौलत की कसरत से मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सरमायादारों का ये हाल है कि उन्हें कारोबारी और दूसरी परेशानियों की वजह से रातों को नींद नहीं आती। वो ख्वाब आवर गोलियों के बगैर सो नहीं सकते। यूनान के करोड़पति ताजिर और स्टाइल और नासिस की बेटी कृष्णा अपने बाप की वारिस और यूनान की सनात जहाज़ रानी की मलिका है।
मगर उस सारी दौलत से वो दिल का सुकून नहीं खरीद सकी। वो सारी दुनिया में मारी मारी फिरती है, उसने कई शादियां की हैं मगर फिर भी उसे सुकून नहीं मिल सका। किसी का ख्याल है कि अगर इंसान की जिनसी ख्वाहिशात पूरी हो जाए तो उसे सुकून मिल सकता है। चुनांचे यूरोप में जिन्स ख्वाहिशात के लिए ज़िना आम कर दिया गया। ज़िनाकारी और लवातत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बाहमी रजामंदी से जब चाहे जहाँ चाहें जिससे चाहें ज़िना हो सकता है। बीवियों का आपस में तबादला हो सकता है। औरतें किराए पर मिल जाती हैं। इंडियन स्टेट में एक शहर आबाद है जिसमें छोटे बड़े मर्द और औरत सब मादरजाद नंगे रहते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी देने के बावजूद इज़्तिराब का आलम यह है कि अमेरिका में हर 3 मिनट में एक कत्ल होता है, हर 13 मिनट में एक ज़िना बिल जब्र किया जाता है, हर 14 सेकंड में कोई ज़बरदस्त डाका पड़ता है। किसी की सोच ये है कि मंशियात के इस्तेमाल से सुकून मिलता है, लेकिन कौन नहीं जानता कि मंशियात ने हज़ारों घरानों को तबाह कर दिया है और लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। ये तमाम ज़राए इंसान को हकीकी सुकून नहीं दे सके, जबकि इंसान सुकून दिल की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। अब खुदा की तरफ से पुकार आती है, मेरे बंदे तूने दौलत के अंबार लगा लिए मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने वजारतें और बादशाहतें हासिल कर ली मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने रक्स सुरूद की महफिलें सजाईं मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने फहाशी, उरियानी और बदकारी की इंतहा कर दी मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने जुए और सट्टे का बाजार गर्म किया मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने सागर व मीना, शराब, हीरोइन, चर्स और भंग का इस्तेमाल करके देखा मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने नत नए फैशन इख्तियार किए मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने कोहे पैमानी की मुहिमें सरके मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने खेलों में कमाल हासिल कर लिया मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने समंदरों और सहराओं को छान मारा मगर तुझे सुकून न मिल सका। तू चांद और सितारों तक जा पहुंचा मगर तुझे सुकून न मिल सका। तूने साइंसी उलूम से हैरत अंगेज मशीनें बना ली मगर तुझे सुकून न मिल सका। आ भोले भटके मुसाफिर, मेरे दरवाजे पर आ, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरी ज़रूरियात का कफ़ील और मालिक हूँ। ओ जुलूम, ओ जुहूल इंसान, तू भी कितना पगला है। अंगारों पर बैठा है और चाहता है कि मुझे ठंडक नसीब हो। गंदगी के ढेर पर बैठकर चाहता है कि मुझे खुशबू के दिलनवाज झोंके आए। कांटों पर बिस्तर बिछाया है और चाहता है कि चुभन भी ना हो। तेल छरक कर तेली जलाता है और चाहता है आग भी ना लगे। अपने खालिक व मालिक को भुला रखा है और चाहता है कि मुझ पर परेशानियां भी ना आएं। और मेरे पागल बंदे, तुझे ना सीम व ज़र की छिना छिन सुकून दे सकती है, ना तख्त व ताज तेरे दिल के इज़्तिराब को दूर कर सकता है, ना रक्स सुरूद और म्यूज़िक तेरी कल्बी बीमारियों का इलाज है, ना ज़िनाकारी और फहाशी तुझे मुतमईन रख सकती है, ना मंशियात का इस्तेमाल तेरे कल्ब व दिमाग को सुकून दे सकता है। अगर तुझे सुकून मिला तो मेरी याद की छाँव में मिलेगा, मेरे ज़िक्र की खुशबू से मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ज़िक्र क्या है, ये बात तो मालूम हो गई कि सुकून मादी चीज़ों से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि सुकून क़ल्ब सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। अब सवाल ये है कि ज़िक्र क्या है, तो इसका जवाब ये है कि यूँ तो तिलावत भी ज़िक्र है, नमाज भी ज़िक्र है, इस्तिग़फ़ार भी ज़िक्र है, दरूद शरीफ भी ज़िक्र है, अल्लाह अल्लाह कहना भी ज़िक्र है। लेकिन ज़िक्र का असल मफ़हूम यह है कि दिल में खुदा का ध्यान नसीब हो जाए, बंदा किसी वक्त भी खुदा से गाफिल ना हो, बल्कि हर वक्त दिल में खुदा की याद ताज़ा रहे। यानी ये तसव्वुर हर वक्त मुस्तहज़र रहे कि खुदा मुझे देख रहा है। और ज़ाहिर है कि जिस शख्स को ये यकीन हो कि खुदा मुझे देख रहा है और उसका यकीन मुस्तहज़र भी हो, तो वो मासियत और नाफरमानी का इर्तिकाब कैसे करेगा। एक आम बादशाह के सामने किसी को उल्टी सीधी हरकत की जुर्रत नहीं होती, तो बादशाहों के बादशाह के सामने बंदा गुनाह और हुक्म अदूली की जुर्रत कैसे करेगा। तो ज़िक्र का हासिल ये है कि बंदा गुनाहों का इर्तिकाब छोड़ दे और ज़िंदगी के किसी भी सफ़र में सिर्फ़ अपने खालिक व मौला की मोहब्बत में मजज़ूब और दीवाना हो जाए। फिर देखिए कि परेशानियाँ कैसे दूर होती हैं और दिल को कैसे सुकून मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है, किसी को रात दिन सरगर्म फरियाद व फुगा पाया, किसी को फ़िक्र गोनागूं से हरदम सरागां पाया, किसी को हमने आसूदा नाज़ेर आसियाँ पाया, बस एक मजज़ूब को इस गमकुदा में शादमा पाया। गमों से बचना हो तो आपका दीवाना हो जाए। गुनाहों में लज्जत या कुल्फ़त, आप कह सकते हैं कि गुनाहों में भी तो लज्जत महसूस होती है, तो इसका एक जवाब तो यह है कि गुनाहों की लज्जत ऐसी है जैसे खुजली की लज्जत के खुद इसमें कोई लज्जत नहीं, सिर्फ बीमारी की वजह से लज्जत मालूम होती है, फिर खुजाने के बाद फ़ौरन जलन और तकलीफ़ होने लगती है।
सो ये दरअसल बीमारी है, जैसे सांप के कटे हुए को करवा भी मीठा मालूम होने लगता है। सो कोई अक्लमंद तंदुरुस्ती के मुकाबला में ऐसी लज्जत को नफ़ा की चीज़ नहीं समझ सकता। अलबत्ता असली लज्जत इबादत में है, चूँकि उन लोगों ने अभी इबादत और परहेज़गारी की लज्जत चखी नहीं, इसलिए गुनाह और नफ्स की लज्जतों की उनको रग़बत होती है। आखिरत और परहेज़गारी की लज्जत हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए कि किस तरह उसके पीछे बादशाहत की लज्जत छोड़ दी थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस लज्जत के पीछे बादशाही कपड़े पहनने छोड़ दिए थे और गरीबों से कपड़े पहनने इख्तियार किए थे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।